Thanks. Thank you so much. Thank you, ji. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Hope all Priya. of Good morning, Good everyone. morning. Hope all of us must be doing great. Yes. Since ever since we are in this beautiful journey, the life has been great, right? Yes, So yes. I, Priya Neda, welcome you all on behalf of Dr. Deepti Verma. So, ma'am will be with us in a short while, maybe, but let's carry on till then. Poonam ma'am, are you there? I've made you the co-host. Yes, she's very much here. So thank you so much for joining in. Thank you so much for getting up so early in the morning and coming into the session and studying, like reading with us all together. This beautiful journey has begun from day one, and we are on the 17th day today, right? So as you all know, we'll be reading two books here. The first book that we read is The Magic, written by Rhonda Byrne. And the second book that we are reading is Creative Visualization by Shakti Gavin. So we'll be starting with the magic book now. I am bringing the book into the screen. Yeah. So here comes the book. So today's chapter is The Magic Check. So we all have a fascination towards a good and a luxurious lifestyle. We all are fascinated towards that. We all know कि what money means to us. हम सभी को अच्छा लगता है कि हम लोग जो भी हमारे पास है, जैसा भी हमारे पास है, हम लोग उससे ज्यादा हमेशा लेने की कोशिश करते हैं. हमारी imaginations के जरिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि we should have more of it. Suppose that we are going, like we always have this thing, and there's no harm in that actually. कोई उसमें बुराई नहीं होती. हम लोग अगर ये भी सोचें कि हमारे पास दुनिया की सारी लग्जरीज होनी चाहिए, हमारी चाहतों की कोई सीमा नहीं होती है. अ पर्टिकुलर पोजीशन कम्स इन आवर लाइफ कि हम लोगों को लगता है उस टाइम पे कि नाउ सभी को कि लगता है कि नाउ इट्स द टाइम दैट वी विल बी गिविंग टू द सोसाइटी एंड वी विल बी डूइंग समथिंग. वो आपके सीओसी वाले जो काम होते हैं, हर कोई कॉर्पोरेट जो है सबके लिए करता है, लाइक इंडिविजुअली सभी हम लोग करते हैं सभी चीज के लिए. लेकिन till that point we will be trying and we'll be making enough, more than enough for ourselves and for the society. अब सबका enough अलग होता है, right? मेरा enough हो सकता है कि इतने करोड़ रुपीस हो, किसी और का enough हो सकता है कि he wants to be a billionaire. So we know that the universe has got like ocean of opportunities for us, limitless, boundless, everything. So आज हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना कोई भी ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन है जो कि हमारी ऐसी चीज है जो हमें चाहिए, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड अटर डिजायर फॉर दैट, उस चीज को हम लोग आज अट्रैक्ट करेंगे. we'll learn to attract that, and that is very easy. To attract money, believe me, is very easy. Just we have to be in the frequency of the universe. We have to be in line with the gratitude practices. That is must, है ना? Gratitude practices, I will say that the Rhonda Byrne's book, this magic book, is a one-stop solution for everything, right? We can get anything and everything that you want. Gratitude is really the answer of everything. आपका रिलेशनशिप में कुछ है, आप रिलेशनशिप को अपना बहुत ही लिमिटलेस करना चाहते हो, बहुत एनरिचिंग करना चाहते हो, फुलफिलिंग करना चाहते हो, उसके लिए है कि आपकी प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं, आप उसको कर सकते हो. उसके बाद आप अपने हेल्थ को आप इतना हेल्दी फील करना चाहते हो कि एवरी डे यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटालिटी. हमेशा आप लाइफ के किसी भी मोमेंट पे आपको डे के किसी भी पॉइंट में आपको जगा दिया जाए तो आप उठ के अपना काम कर सकते हो, उतनी एनर्जी आपके पास हो. उस चीज के लिए भी वी हैव गॉट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस. यस्टरडे ओनली वी डिड द प्रैक्टिस फॉर आवर हेल्थ, राइट? मैम ने इतने अच्छे से बताया कि हाउ वी टुक द 9 स्टेप्स, है ना, 9 हमने स्टेप्स अपनाए थे. कैसे करके हम बनाए थे हम लोगों ने? 3, 5, 1, है ना? हमने 3 ग्रेटिट्यूड्स अपने पास्ट के हेल्थ के लिए लिखे थे कल, 5 ग्रेटिट्यूड हमने अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए लिखे थे, एंड प्रेजेंट का ग्रेटिट्यूड करके हमने एक जो हेल्थ हमारा गोल है, वी अचीव्ड दैट हेल्थ गोल बाय प्रैक्टिसिंग द विजुअलाइजेशन फॉर दैट.
तो वो हमने कल किया। एंड नाउ दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, कि जिसमें कि हम लोग मैनिफेस्ट करना सीखेंगे कि किसी भी चीज की कोई अटर डिजायर है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज है जो कि हम चाहते हैं कि हमारे पास हो वो। एंड हाँ, इसमें ये है कि हम लोगों को लैक के फीलिंग में नहीं जाना है। एंड रोंडा बर्न विल टेल अस कि किस तरह से हम बिना लैक में गए, हम अपने थॉट्स के जरिए, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है, कि हम एनीथिंग एंड एवरीथिंग को अपनी लाइफ में बहुत ही इजीली, बहुत ही स्मूथली अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिक चेक। सो Dishant will be reading for us today. Dishant, are you there? Yep. Yes. Yes. Yes, Dishant, please read. Start reading from day 17. Hi. Good morning, good afternoon, good evening, respectively. Day 17, the magic check. I'll explain the picture now. This picture is so clear, crystal clear to us. इसमें क्या है कि एक वॉलेट है, वॉलेट के अंदर एक चेक रखा हुआ है। उस चेक में जो है ना, वो जो पेई है वो वहां पर हमने अपना नाम लिखना है वहां पर, और ये यूनिवर्स के बैंक से चेक आता है हमारे पास। तो वो कैसे आएगा, हाउ विल बी क्रिएटिंग दैट मनी, और दैट मनी जो है, अगर हम लोग मनी का सोचेंगे ना, तो उसके लिए नहीं, हम लोगों को वो सोचना है कि व्हाट इज एक्चुअली आवर डिजायर, हम चाहते क्या है ना। हम वो जो मनी हमारे पास आएगा, हमने मनी की चाहत नहीं करनी है इसमें, हमने क्या चाहत करनी है, क्योंकि मनी की चाहत अगर करेंगे ना तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा हमारे मन में कि इतना मनी कैसे आएगा, या इतना मेरे पास तो अभी इतना नहीं है, हाउ कैन आई अट्रैक्ट दैट। नहीं, वो नहीं सोचना है, हमने उस चीज के बारे में सोचना है। क्योंकि मनी के बारे में ना एक और चीज पता है क्या हो जाता है, हम जब पैसे के बारे में सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पैसे के बारे में सोचना ना इज मेकिंग अस सेल्फिश। हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज को ऐसा सोचते हैं कि क्या मतलब, क्योंकि पता है, बिकॉज आवर मेंटल अपब्रिंगिंग हैज बीन डन लाइक दैट। बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हम लोगों को ये पैसे की भूख, मतलब पर्टिकुलरली ऐसा बोला जाता है कि उसको तो पैसे की भूख है, या ये सब चीजें हम लोग सुनकर आए हैं। तो हमारी जो मेंटल, जो हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स है ना, वो उस तरह के बन गए हैं। सो यहाँ पर रॉन्डाबन बताएंगी कि किस तरह से हमने उस मनी के लिए नहीं, बल्कि उस चीज के बारे में सोचना है, उस चीज को हम लोगों ने अट्रैक्ट करना है अपने तरफ से। मनी कितने पैसे का आता है या कितने रुपए का आता है उस पर नहीं हमने कॉन्सेंट्रेट करना, हमने कॉन्सेंट्रेट करना है कि वो चीज जिसका हमें अटर डिजायर है, वो जब हमारे पास आ जाएगी तब हमारी फीलिंग कैसी होगी। मतलब we'll be looking to the solution, we won't be looking to the question of our minds, we won't be looking to the challenges what we are facing now, we will be looking at the things, है ना। हम लोगों को यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी में रहने के लिए अपनी फीलिंग्स को रेज करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग को हम लोगों को उनको इनहांस करना पड़ेगा अबंडेंस की तरफ, लैक की तरफ नहीं, अबंडेंस की तरफ। एंड उसके लिए रॉन्डाबन हमें बताएंगी कि क्या तरीके हैं उसको करने के लिए। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में रॉन्डाबल विल से कि आपके जो हमारे पुराने जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो हमारे दिमाग में इतने सालों तक वो सोच सोच के रिपीट कर करके हम लोगों ने उसको बहुत ही ज्यादा हार्ड वायर्ड कर दिया है, उन थॉट्स पे काम करेंगे सबसे पहले हम, कि किस तरह से अपने नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीव्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे पॉजिटिव बिलीव्स में एंड अबंडेंस की तरफ। एंड दैट इज वेरी इजी, क्योंकि वो जो चीजें हैं ना, वो नेगेटिव जो चीजें हैं, या वो हम डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स जो हैं मनी के बारे में, ये सब चीजें किसी भी पत्थर पे नहीं लिखी हुई हैं, किसी जगह पे कार्व नहीं करी हुई है ना। कार्विंग को फिर भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हमारे ब्रेन में ही तो है वो, हमारे न्यूरल पैटर्न में ही तो है, एंड उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है हमारे बिना, है ना। हम हैं तो वो थॉट्स हैं, हम नहीं तो वो थॉट्स नहीं, दे आर नॉट विजिबल। तो उन चीजों को चेंज करना आसान है, बहुत आसान, और हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान रोंडा बर्न ने कर दिया है। एंड जो सेकंड बुक हम लोग जो पढ़ते हैं, वो बहुत ही इजीली एफर्मेशंस के जरिए हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो लिमिटिंग थॉट्स है, उनके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से एक कवर चढ़ा देता है एफर्मेशंस का, उनको डिस्ट्रॉय करके एफर्मेशंस की ऐसी लेयर चढ़ा देगा
कि हमारे नए बिलीव्स बनाने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। सो ये वाला पार्ट है तो कि हम अपने नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीव्स को किस तरह से स्टॉप करके अबंडेंस को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट दैट। सेकेंड पार्ट इज अबाउट कि हम किस तरह से रोंडा वन हम अपनी स्टोरी बताएंगी अपने। हमेशा रोंडा वन अपनी स्टोरी के एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वो इतनी ज्यादा मेहनत करती है ना कि हम लोगों को समझाने में कि किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ को किया, कहाँ पर वो थी और कहाँ वो आज पहुंच गई, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिसेस करके और अपने आप को ये फील करके कि हाँ, मेरे पास जितना है उतने से मैं प्यार करती हूँ ताकि मेरे पास और ज्यादा आए, है ना। बाय लविंग व्हाट वी हैव नाउ इज द ओनली वे टू अट्रैक्ट मोर फॉर अस, है ना। वो सेकेंड पार्ट इज अबाउट दैट, रोंडावन अपनी स्टोरी बताएंगी। एंड थर्ड पार्ट में वो बताएंगी कि किस तरह से हम लोग एक चेक लिखेंगे अपने आप को और वो चेक को रियलाइज कर सकेंगे हम लोग उस प्रैक्टिस के जरिए। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारा 3 पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो नाउ अगर हम चेक की बात करते हैं तो चेक जब हम लिखते हैं ना, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल तो जिम कैरी का है। उन्होंने अपने आप को चेक लिखा था और बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी स्टोरी थी उनकी, बहुत ही मोडेस्ट फैमिली बैकग्राउंड था उनका। लेकिन जिम कैरी वो आप लोगों काफी सारी मूवीज आई हैं उनकी, आप वो देख सकते हैं। वो जैसे हमारा हिंदी वर्जन है ना, वो द ब्रूस ऑलमाइटी का एक हिंदी वर्जन आया था कि गॉड टू सी ग्रेट हो, शायद इस तरह का कुछ था, वो सलमान खान प्ले कर रहे थे उसमें। तो ये उस वाले जो हीरो की बात है, वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ही मंजे हुए कॉमेडियन है वो, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो उन्होंने सालों पहले, जब उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने ना अपने वॉलेट में एक चेक रखा हुआ था। वो चेक जो है ना, एक पर्टिकुलर बहुत ही ह्यूज अमाउंट का था वो अपने वॉलेट में हमेशा वो रखते थे, है ना। वो इररिस्पेक्टिव, अब आप देखिए ना, उन्होंने बहुत सालों में उसको उन्होंने अपने लाइफ में उनको मैनिफेस्ट किया, लेकिन उससे पहले वो अपनी फ्रिक्वेंसी रेज रखते थे ना। हम लोगों को ये लगता है कि हमने तो पिछली बार भी चेक बनाया था, वो तो अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ। हम लोग को ये लगता है कि हमने ये वाला थॉट हमने रेज किया था, हमने ये थॉट तो हमने फ्लोट किया था यूनिवर्स में, या हमने तो ये वाला विश किया था, लेकिन वो तो अभी फुलफिल नहीं हुआ। तो वो सोच सोच के क्या करते हैं हम लोगों में ना, वो रेजिलियंस आ जाती है कि यार नहीं, मतलब हम लोग वो उस चीज को इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे मन में ना रेजिस्टेंस वाले थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, हो तो रहा नहीं है, कैसे करूं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखना है कि अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करें। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेज्ड रहती है ना, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इन लाइंड विद द यूनिवर्सल पावर्स रहती है ना, तो हम लोग एक दिन के अंदर भी हमारे चेक को रियलाइज कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट। किया है हमारी आरती है, आरती गुप्ता है, उन्होंने बहुत ही कम, मतलब विद इन आवर्स उन्होंने अपना चेक रियलाइज करवा लिया था। सो या, तो वी कैन डू दैट। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। मैम ने वो एफर्मेशन दिया था ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो या, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। हम लोगों को ये जो जितने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं सभी ग्रुप में, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता है, मैं ना सरप्राइज नहीं होती हूँ। मुझे लगता है कि सरप्राइज होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वंस यू आर इनटू दीज प्रैक्टिसेस, वंस यू नो योर पावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो आवर अनलिश्ड पावर। हमारे जो अंदर पावर है, उसको उसके जरिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना। तो हमारा कुछ भी लिमिट ही नहीं है, बाउंडलेस है एंड लिमिटलेस है अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए। तो हम लोग आज उसी पावर को यूज करके हमारी जो मनचाही चीज है उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे एक मैजिकल चेक के जरिए। यस दिशांत, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। I quote, in the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. I unquote. William S. Burroughs, writer and poet. When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel gratitude for money more than you feel a lack of money, a new condition is created.
eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that pushes money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. Yes, Dishant will take a small pause here. So तो यहाँ पर रोंडागन ने हमें बताया है कि हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग हो चुकी है, हमने उसके कारण अभी तक की अपनी दुनिया बनाई है ना? जो भी हमने सोचा है, जैसा भी हमारे अंदर थॉट्स हैं, वही हमारा लाइफ क्रिएट करते हैं। अगर हम लोगों की कंडीशन आज ऐसी है कि हमें सोचना पड़ता है कोई भी चीज को खरीदने से पहले हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि क्यों हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम लोग उसको ये नहीं सोचेंगे कि इतना ज्यादा चीज जो है ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब हम लोग, जैसे मैम ने भी उस दिन इस बात को बहुत नोटिस किया था, मैम बोल भी रही थी कि ना वो एक्सपेंसिव वर्ड्स, मतलब अभी तक ना हम लोगों को अपनी वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी और आगे हो जाएगी, कोई बात नहीं अगर हम लोग अभी ऐसे सोच भी रहे हैं। तो नथिंग इज एक्सपेंसिव फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर पॉकेट। आज हो सकता है वो चीज आपके लिए एक्सपेंसिव हो, लेकिन कल को आपके पास इतनी ज्यादा वो चीज अबंडेंस में आ जाएगी, अब आपका जो लिमिट है वो रेज्ड हो जाएगा। आज हो सकता है 10,000 रुपीज का वॉलेट आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव आपको लगता हो, लेकिन फिर भी हमने वो एक्सपेंसिव वर्ड यूज नहीं करना है। हम लोग अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट वॉलेट राइट नाउ, हमने ये यूज नहीं करना है। इवन इफ वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू बाय दैट वॉलेट राइट नाउ, वी विल नॉट यूज दैट। We have to use and we have to keep a watch on the words that we use about money any moment. किसी भी टाइम ऐसा नहीं कि खाली सेशन में बैठे हैं तो तब नहीं, हमारा एक्चुअल टाइम तो शुरू होता है 7, अब जब हमारा 7:15 या 7:30 के बाद, जब हम लोग रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को फेस करते हैं। आज हम लोग फिर से वही करेंगे कि हम लोग एक बार फिर से फीलिंग चार्ट को हम लोग डाल देंगे ग्रुप में, तो फीलिंग चार्ट का एक्सप्लेनेशन भी डाल देंगे, सो दैट हम लोग अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज्ड रखें। अगर हम लोग अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज्ड रखते हैं ना, तो हम लोग अपनी लाइफ में जो भी चीज हम चाहते हैं, जिसका कोई मोनेटरी वैल्यू है
या कोई रिलेशनशिप का वैल्यू है उसका, या आपका हेल्थ का चीज है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट वी हैव टू रेज अवर फ्रीक्वेंसी टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स। वही है ना कि ग्रैटिट्यूड इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। वो कहते हैं ना कि हम लोग कभी किसी मॉल में जाते हैं, अब मॉल में जाकर हम लोगों को बहुत इजी हो जाता है ना, कि बिकॉज वी गेट शॉप्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक आपको जो भी चीज चाहिए होती है आपको वहां पर उसके शॉप्स मिल जाते हैं। आप किसी पर्टिकुलर स्टोर में जाते हो, वहां पर आपको मल्टीपल ब्रांड्स के कपड़े भी मिल जाते हैं या कुछ ऐसे मिल जाते हैं। तो द सेम वे ग्रैटिट्यूड जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग है। लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड इज द ओनली सोल्यूशन। और यहाँ पर तो रोंडा बर्न किस तरह से हमें ग्रैटिट्यूड के साथ विजुअलाइजेशन भी सिखाती हैं। तो ये जिस तरह से ग्रैटिट्यूड वन स्टॉप सोल्यूशन है, उस तरह मुझे लगता है कि ये जो मैजिक बुक है वो भी वन स्टॉप सोल्यूशन है। एंड विद दैट व्हेन वी आर कंबाइनिंग द पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन and the other book, we are reaffirming that positivity into our mind। क्योंकि वो किसी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है जो नेगेटिव थॉट है, वो तो हमारे ब्रेन के न्यूरल पैटर्न्स है ना। तो इट इज वेरी इजी टू चेंज दोज थिंग्स। हमको खाली क्या करना है ना, हमारे उस नेगेटिव थॉट के जो जो जहां से उसका जन्म हुआ है ना, जहां से वो चीज हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना, उसके ऊपर जो है हमने अपनी एफर्मेशन की जो है वो लेयरिंग चढ़ा देनी है। हमारा वो जो चीज हो चुका है, जो हमारा थॉट बना है, वो भी तो बार बार रिपीट 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 कर करके हुआ है। चाहे वो आपने मुंह से बोला हो, चाहे वो आपका थॉट हो, किसी भी तरह से वो रिपीटेशन से वो नेगेटिविटी हमारे लाइफ में एक्सप्रेस हुई है ना। तो हमने तो सिर्फ यही करना है ना, उस नेगेटिविटी की जगह हमने पॉजिटिविटी को सुपर इम्पोज कर देना है ना। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो नेगेटिव बिलीफ आपका वो वैनिश हो जाएगा, और हमारे न्यूरल पैटर्न्स जो पूरी तरह से नए बन जाएंगे। तो आई थिंक मैम इज हियर। मैम, वुड यू लाइक टू टेक ओवर प्लीज, if you can? I think I have someone sleeping in the room, so I don't want to Okay, disturb Kinjal. Yeah. okay. Okay, sure, ma'am. Okay. So yes, we'll continue with this then. Uh, so yeah. So Rhonda Byrne says that when you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. तो यही करना है हम लोगों ने, जो हमारी पुरानी बिलीव्स हैं, जो हमारे पुराने जो न्यूरल पैटर्न्स जो बन चुके हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट होंगे अभी, हमें क्या करना है ना, उन्हीं न्यूरल पैटर्न्स को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। बिकॉज उसको हम बहुत ही इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? अपने पॉजिटिव थॉट से। तो वही हम लोगों को रोंडा बर्न बताती हैं कि इस तरह से करना है। और मनी के लिए कोई भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट हम लोगों ने नहीं देनी है, कोई भी बैड फीलिंग नहीं देना है कि मनी आज हमारे पास जो भी कंडीशन हो। रोंडा बर्न के पास उसके पावर बुक में था कि उनके पास इतना माउंटिंग डेट था, उनके पास अपने स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं था, तो फिर भी ना उनके पास एक $100 का चेक बचा हुआ था। $100 उनके पास, वो कहते हैं ना, बचे हुए थे। तो उन्होंने पता है क्या क्या, इन स्पाइट ऑफ गिविंग थॉट टू इट कि हाय मेरे पास है नहीं कुछ, मतलब वो सारे के सारे उनके जो भी कर्जदार थे वो आ गए थे उनको लेने के लिए, मतलब मतलब बिल्कुल ही होने वाली थी इस तरह से कि कुर्क होने वाली थी। बट स्टिल शी वेंट एंड शी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट $100 अमंग द नीडी वंस। और मैजिकली क्या हुआ उनके साथ, क्योंकि उन्होंने लैक वाली फीलिंग तो दी नहीं थी ना, उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं था ना। हम कब देते हैं लोगों को? हम तभी तो देते हैं जब हमारे पास बहुत हो। तो उन्होंने वही फीलिंग जनरेट करने के लिए लोगों को दिया, एंड अगले ही दिन उनके किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का उनके पास वो चेक आ गया, जिस चेक के कारण वो अपना डेट क्लियर कर पाई और आगे भी इन्वेस्ट कर पाई। तो इसीलिए रोंडा बर्न कहती है कि अगर हमारी जो भी नेगेटिव फीलिंग है कोई पैसे को लेकर या किसी भी थॉट को लेकर, या आज हमारा कोई भी सर्कमस्टांस ऐसा हो कि जो हमें लिमिट करता हो हमारे थॉट्स को, तो सर्कमस्टांसेस को हटाने का, उसको हमारे लाइफ में वो जो पॉवर्टी है उसको रिमूव एंड पूरी तरह से इरेडिकेट करने का ही तरीका ये है कि सबसे पहले वी हैव टू वर्क ऑन आवर थॉट्स। अगर हमारे थॉट्स ठीक होंगे तो हमारे पास लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हमारे पास अगर एनवी थॉट्स है, अगर हमको ये लगता है कि हमारे पर्सन ने, हमारे नेबर ने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, उनके पास तो 4 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास तो 2 ही है, नहीं,
वो नहीं लाना है। हमने क्या करना है, उनकी उस गाड़ी को या उनका वो जो भी प्रोस्पैरिटी का सिंबल है उस चीज को लव देना है। उसके बाद ये आप देखोगे, आप वो लव वाली फीलिंग जनरेट करोगे ना, और अपने पास जो है, अपनी जो गाड़ी है उसको लव दोगे ना, तो विद इन नो टाइम यू विल बी हैविंग even better car than your neighbor, yeah, even better dress than your friend has right now. So it is very easy. अगर आप मनी के लिए डिसअपॉइंटिंग या इस तरह से लैक वाला फीलिंग लाओगे, तो हम लोगों को लगेगा कि नहीं, मतलब अगर हम लोग ये डिसअपॉइंटिंग फीलिंग ला रहे हैं अपने मन में, तो हमारा चेक जो है या हमारा जो भी मैनिफेस्टेशन है मनी का, वो हमारा, हम लोग अपने गोल तक अचीव नहीं कर पाएंगे, गोल अचीव नहीं कर पाएंगे फिर। इसके लिए हम लोगों ने फीलिंग चार्ट को नजर मारेंगे आज, कि फीलिंग चार्ट में जो बिलो द लाइन वाली फ्रीक्वेंसी वाली फीलिंग है ना, फियर है, डर है कि मेरे पास तो इतने 10,000 रुपए हैं, तो मैं ये खर्च कर दूं तो कहाँ से आएगा। अरे नहीं, आपके पास तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है। मनी क्रिएट करना बहुत ज्यादा इजी है। आप मनी को एनर्जी की तरफ से देखो कि वो एनर्जी है। मनी तो बंडल ऑफ एनर्जी ही तो है। हम लोग जिस तरह से एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग जब से, हम लोग कभी कभी ना लैकेडासिकल बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी फील करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, राइट। तो एनर्जी ड्रिंक लेकर हम लोग अपने आप को बहुत ही स्ट्रेंथन्ड फील करते हैं, रेज्ड एनर्जी फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं। इन द सेम वे वी कैन, हमारे लिमिटिंग फैक्ट आया ना, कोई कोई भी लिमिटिंग थॉट आया, तो उसके जगह हम लोग उसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। हमारे मन में ये आया कि आई डोंट हैव एनफ मनी, तभी हमारे मन में ये वाला कैसेट चालू हो जाना चाहिए, ये वाला बार बार प्ले हो जाना चाहिए, मनी अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस फॉर मी, या मनी इज इन अबंडेंस फॉर मी, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हम लोगों ने क्या करना है, खाली उस नेगेटिव बिलीफ की जगह वो पॉजिटिव थॉट ही तो इन्वोक करना है। बहुत आसान है, हो जाएगा। एंड बीइंग इन दिस प्रैक्टिस इट इज एक्चुअली वेरी इजी। सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव थॉट आएगा आपके मन में, आता रहेगा। कोई, हम लोग उसको दरवाजा तो नहीं है ना कि हम उसको आने नहीं देंगे, कोई फिजिकल चीज नहीं है कि हम लोग दरवाजा बंद कर देंगे वो नहीं आएगा। आएगा नेगेटिव थॉट, लेकिन वी विल नो हाउ टू इरेडिकेट दैट। धीरे धीरे करके इट विल गेट इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर माइंड विद द हेल्प ऑफ इन्वोकिंग दैट, अगेन दैट पॉजिटिव इनटू योर माइंड। जो भी नेगेटिव आया उसको बस आप फ्लिप कर दो, उसको ही आप ऑपोजिट करके सोच लो, हाँ ये है। एंड दिस इज वेरी इजी। और आज इजी नहीं होगा, हो सकता है अगर हमारा आज हमारा फर्स्ट डे है ना, डे 1 है, हम लोग पहली बार इस बुक को कर रहे हैं या चैप्टर कर रहे हैं, तो इजी नहीं होगा। विद द प्रैक्टिस वी विल मेक इट हैपन, क्योंकि वो नेगेटिव बिलीफ को स्ट्रेंथन करने के लिए भी तो हमने प्रैक्टिस ही किया है ना। अननोइंगली अनविलिंगली हमने प्रैक्टिस ही किया है वो नेगेटिव चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये अगर पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, वही थॉट को, एफर्मेशन को रिपीट कर करके कि, और हम लोग एक जमीन तैयार करेंगे अपने आप को रिसीव करने के लिए, अबंडेंस रिसीव करने के लिए। उसके लिए वी हैव टू स्टे इन द रेज्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हम लोग बताएंगे, ये हमें रॉन्डाबन बता रही है। Yes, Dishant, you read from here. You have already practiced. You have already practiced gratitude for money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you're not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you're about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there's a money back offer on a purchase. Or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises
ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or say a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Yes, we have to be very vigilant about the thing from where we are getting money, है ना? Every penny saved is penny earned, है ना? हम लोग जो भी पैसे हम लोगों को कहीं पर हम लोग जाते हैं, जैसे सपोज आपको एक पर्स चाहिए था, आपको उस पर्स का बहुत ज्यादा डिजायर था, बट अननोइंगली आप जब अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज रखते हो ना, तो हो सकता है आपका फ्रेंड वो पर्स आपको गिफ्ट कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हुआ है. बट वी हैव टू डू दैट. वी हैव टू ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन हाउ मच वी आर गेटिंग. अब हम लोगों में से कितने लोग करते हैं, अमेजोन में आपने डाला और आपको पता चला कि हाँ यू आर गेटिंग अ 50% डिस्काउंट ऑन दिस, क्या हम उस चीज को थैंक्स तब बोलते हैं कि थैंक यू अमेजोन फॉर दिस वंडरफुल डिस्काउंट? अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, अगर वी आर इनटू दिस प्रैक्टिस कि व्हेनेवर वी आर गेटिंग अ डिस्काउंट वी आर थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर दैट, then money will come to us. Because these practices are very much practical, you know. This is not just a book. We have to make it a way of your life, right? हम लोग जब तक इसको अपना वे ऑफ लाइफ नहीं बनाएंगे तो बिलीव मी हम लोगों को वो जो स्वाद जो है ना उसका नहीं आएगा, पूरा पूरा स्वाद जो है ना उसका नहीं आएगा जब तक हम लोग इसको अपना अपना डेली प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे. हर कोई प्रैक्टिस जो है ना वो इसी बात पर एम्फेसाइज करती है कि वी हैव टू मेक दीज प्रैक्टिसेस आवर डेली लाइफ प्रैक्टिस. दीज आर वेरी मच प्रैक्टिकल थिंग्स. अगर अभी भी हमारे मन में ऐसा आता है कोई भी चीज को हम लोग लेने जाते हैं कि अपना वॉलेट को चेक करके नहीं वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो वही है ना, हम लोग अगर उसको वो वाला चीज आ गया ना हमारे अंदर कि वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, उसको हम लोग मोल्ड कर लेते हैं कि हम लोग उसको आज नहीं कर पाएंगे कल कर लेंगे, तो हम लोग ऐसी जगह में जाएंगे नहीं, हम लोग ये बोलेंगे नहीं. हालांकि थॉट भी नहीं आना चाहिए हमारे मन में, बट स्टिल विल वॉच आवर थॉट कि हमारे मन में तब ये थॉट आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली फ्लोट कर जाना चाहिए, आज नहीं मैं ये कल ले लूंगी, है ना? तो अपने आप को हम लोगों ने ये वॉच करना है कि क्या है. वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल. हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, आपको कोई डिस्काउंट के रूप में पैसा मिल जाए. हो सकता है कि अब जैसे बजट आने वाला, यूनियन बजट जब आता है ना, तो बहुत सारी चीजों में ना सरकार इंपोर्ट ड्यूटीज घटा देती हैं, बढ़ा देती हैं, जो भी करती हैं. उसमें आप देखोगे कि वाह, उस टाइम के हम लोग थैंक यू बोलते हैं. गवर्नमेंट को हम लोग बहुत ज्यादा कर्ज करते हैं कि ये कर देते हैं, इतना अब जब पैसा ले लेते हैं हम लोगों से, इतना इन्फ्लेशन हो रहा है. पर क्या हम लोग जब डीए जितना जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डीए बढ़ जाता है, डे अर्नेस अलाउंस वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए तो हम लोग थैंक यू बोलते ही नहीं है गवर्नमेंट को कि वो तो बढ़ाया है ना. तो क्या है ना कि हम लोगों को इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे ये देखना है कि कोई नेगेटिव बिलीफ आया तो उसको हमने रिवर्ट कर देना है, और अपने आप को बहुत ज्यादा विजिलेंट रखना है कि अगर हम लोगों को कोई डिस्काउंट मिलता है, कोई हम लोग अपने फ्रेंड के साथ गए, हम लोग पार्टी में गए या हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, आपका फ्रेंड आपके लिए पे करना है, तो वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट. तो उन सब चीजों को हम लोगों ने आज अब अपने दिमाग में रजिस्टर करना शुरू कर देना है, एंड वी हैव टू मेक अ पॉइंट ऑफ इट. वो मैजिक रॉक प्रैक्टिस इसीलिए तो करते हैं हम लोग, ताकि वो चीजें हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाएं. इसीलिए वो जरूरी है कि दिन की छोटी छोटी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों को हम लोग उसको रिविजिट करें दोबारा रात को, इसीलिए वो जरूरी है, सो दैट वो हमारा पैटर्न बन जाए थिंकिंग. अगर वो हमारा न्यूरल पैटर्न बन चुका है तब हमारे अंदर कोई भी लिमिटिंग फैक्ट नहीं आएगा.
तभी हम लोग अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल वे में जी पाएंगे, इन प्रैक्टिसेस को उसमें इन्वोक करके। हर एक चीज में ये प्रैक्टिसेस हमारी काम आएंगी। तो रोंडा बर्न कहती है अपने आप को विजिलेंट रखना कि ये जो आपका जो मनी है, आपके पास वो मनी आपके प्राइज के तौर पे आ सकता है। हो सकता है आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया हो और उसके अगेंस्ट आपको कोई मोनेटरी वैल्यू का कोई चेक मिला हो, वो भी हो सकता है। मतलब इट कैन कम टू यू इन एनी फॉर्म। वी जस्ट हैव टू बी विजिलेंट फॉर दैट एंड वी हैव टू पे इमेंस ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। तभी हम लोग बहुत ही ऐसी वंडरफुल सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, और मनी को भी हम लोग किसी भी तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। और इसका यही तरीका है ग्रेटिट्यूड। ओके, सो दिशांत, वेयर वी वर, मोस्ट लाइकली, हाँ यहाँ से, मोस्ट लाइकली यू हैव एक्सपीरियंस्ड। Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's the universal law. Any circumstances that result in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. When I arrived in United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was so grateful. So I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. यस दिशांत, अ मोमेंट। सो आपने देखा रोंडा बर्न ने किस तरह से हर रोज, मतलब वो जिस तरह से एक टैक्सी स्टैंड उनके घर के पास था, फिर भी वो उस चीज के लिए थैंकफुल थी। वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है आज के दिन भी, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम लोग रहते हो, यूनाइटेड स्टेट्स जाना सभी के लिए एक सपना होता है। शी वॉज ग्रेटफुल दैट शी वॉज देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। हर एक चीज के लिए आप ये देखो वो किस तरह से अंडरलाइन कर रही है ना, कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल थी, मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल थी। तो ये हम लोग खाली बोलने के लिए नहीं होता है कि हम लोगों ने वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमने इतने ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। वी एक्चुअली हैव टू फील दैट वे। रोंडा बर्न इसीलिए हम अपने एग्जांपल्स बार बार हमें देती हैं, सो दैट हमारे दिमाग में ये घुसे कि ये खाली लिखने की प्रैक्टिस नहीं है कि हमने लिख लिया और हो गया। वी हैव टू फील दैट थिंग, है ना, कि हम लोगों को ये छोटी छोटी चीजों को, जो हमें जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, उसको हम लोग रजिस्टर करें। और वो रिवॉर्ड जब हम लोगों को मिलता है, कोई बच्चे को जब छोटी सी एक टॉफी मिलती है ना, अब जस्ट सपोज एक शुगर का पेशेंट है और उसको उसके डाइटिशियन ने बोल दिया कि आप एक दिन आप चॉकलेट खा सकते हो, वाओ, उसके लिए वो कितना खुशी वाली बात हो जाएगी ना। जस्ट दैट थिंग विल गिव हिम सो मच जॉय, है ना। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है ना, ये छोटी छोटी चीजों को जब हम रजिस्टर करना शुरू कर देंगे ना, so that will bring joy into our life. And when we will combine that joy with our gratitude practices, automatically, matlab there is no other way out, we have to receive that, because we'll be raising our frequency to the frequency of the
यूनिवर्स, है ना। तो इस कारण से ये आप लोग इन चीजों को ना बहुत ध्यान से सुने और पढ़ें, ताकि हम लोग इस चीज को समझें कि किस तरह से हम हर छोटे छोटे चीज में अपनी ग्रैटिट्यूड को उसमें देख सकते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो रॉन्डाबन ने बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मैं यूएस में आई, लेकिन आज वो एक बिलियनर है। क्यों है? वो छोटी छोटी खुशियां उन्होंने देखी, उन छोटी छोटी खुशियों को उन्होंने रजिस्टर किया, उन छोटी छोटी खुशियों को उन्होंने समझा, और उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया। फर्स्ट शी गॉट लाइक शी बिकेम ग्रेटफुल फॉर वट एवर शी हैड, एंड देन शी क्रिएटेड दैट that foundation for receiving that huge amount of happiness into our life. थोड़ी खुशी से huge amount of खुशियां वो लेकर आए अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के हर एक फील्ड में। सो ये अभी रॉन्डाबन हमें बताएंगे ये प्रैक्टिस कैसे करनी है। यस दिशांत, today's magical practice. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing that you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic check from the secret.tv magic check website. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next check. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely the magic of gratitude worked. And the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. Once you have filled the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using that money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying an airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. After you have completed these steps, take the magic check with you today, or put it in a place where you will see it very often. On at least 2 more occasions during the day, today take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can.
as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it in your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. Now the practice, magic practice number 17, the magic check. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Take the magic check with you today, or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. And at the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else that you want, and repeat steps 2 to 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you, Dishant. Thank you so much for reading so slowly, beautifully. Thank you so much. So Rhonda ने अब हमें बताया है कि how can we practice this particular thing, कि magic check को हमने कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, वो हमें रॉन्डा बताती हैं. So इस सबसे पहले यह है कि किस चीज के लिए आपको चाहिए, है ना? We have to keep our mind खुला, है ना? हमारे माइंड को हम लोगों ने ये सोचना है कि हमें ये चीज के लिए चाहिए. पैसे के लिए सोचेंगे ना तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. तो उस चीज को लव और एनर्जी देंगे हम लोग, जिस चीज के लिए हमने वो उस मनी को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट? अगर हमें वो मनी अपने यूरोप टूर के लिए चाहिए, या मान लीजिए जैसे ये बता रहे हैं कि चाइल्ड के एजुकेशन के लिए चाहिए, आपने कोई पर्स आपने लेना है जो कि आप ऑनलाइन से आप ज्यादा शॉपिंग अगर आप ऑनलाइन से करते हो ना, तो हम लोग उसको इमेजिन करेंगे. तो हम पर्टिकुलरली चीज के बारे में सोचेंगे, उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में सोचेंगे, उस मोनेटरी वैल्यू के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना? तो उसको परफेक्टली उसके बारे में सोचकर हम लोग एक चेक बनाएंगे. वो चेक हमारे यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है, हम उसको भेज देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे, हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास जो भी चेक है, हम उसके ऊपर भी हम उसको भी यूज कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले हम लोग चेक के ऊपर जो है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे. उसके बाद जो पेई वाली जगह होती है जिसको वो चेक जाना है, जहां पर कई बार हम अपने आप को लिखते हैं तो सेल्फ लिख लेते हैं ना,
तो सिंस दिस पर्टिकुलर चेक इज फ्रॉम द बैंक ऑफ द यूनिवर्स, सो पेई वाले जगह में हम अपना नाम लिखेंगे, जो भी हमारा नाम है वो नाम लिखना है। और जो डेट वाली जगह होती है वहां पर आज का डेट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हमने बैक डेट नहीं डालनी है, हमने फ्यूचर डेट नहीं डालनी है, हमने आज की डेट डालनी है, बस यही करना है। और स्पेसिफिकली वही अमाउंट लिखेंगे, डालेंगे हम लोग जितने अमाउंट का वो पर्टिकुलर चीज आती है। अगर आपको नहीं पता है कि, अगर मान लीजिए आप एप्पल का वॉच लेना चाहते हो, आपको नहीं पता है, वो एग्जैक्टली नहीं पता है कितने का आता है, तो ऑलवेज हम वी कैन गो ऑनलाइन, और ऑनलाइन में से हम देख सकते हैं कि कितने का वो आता है, और उस पर्टिकुलर उसी अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग उस चेक को कैसे, मतलब ये तो हमने चेक फिलिंग की बात होगी, डिटेल्स हमने भर दिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, उस चेक को हम लोग हाथ में उठाएंगे, अपने उंगलियों की जो पावर है, हमारे जो नर्व एंडिंग्स हैं, हमारे डायरेक्टली हमारे माइंड के साथ वो ऑब्वियसली कनेक्टेड होती हैं। तो हमने आज इनके पावर को यूज करके उस ब्लैंक, वो जो चेक है वो ब्लैंक नहीं है, वो यूनिवर्स की तरफ से आपके पास आता है, आपके पास आएगा वो अमाउंट। तो उसको हमने अपने हाथों में उठाना है। हाथों में उठाकर हमने आंखें बंद करके, आंखें बंद करने से हम ज्यादा अच्छा पिक्चर कर पाते हैं कई बार, विजुलाइज करना है इस अमाउंट को, नहीं उस चीज को जो हमें चाहिए। कि वो बैग आपने लिया और वो आपको कैसा लग रहा है, आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं कि वाओ ये पर्स तो तेरी ड्रेस के ऊपर पूरा जा रहा है, इतनी अच्छी तरह से आप उसको, ये फीलिंग फ्रीक्वेंसी में जाओगे, जॉय, खुशी वाला फीलिंग करोगे, आप फीलिंग आएगी आपको। बस वही करना है हम लोगों ने। 1 मिनट तक हमने यही इमेजिन करना है कि वो पर्स आपके पास आ चुका है, या जो भी चीज आपको चाहिए थी पर्टिकुलरली वो चीज आपके पास आ चुकी है। उसके बाद वाई यू वॉन्ट दैट, आपको किसी पार्टी के लिए कोई ड्रेस चाहिए, यू वॉन्ट दैट ड्रेस फॉर दैट पार्टी, सो यू विल पिक्चर योर सेल्फ इंजॉइंग दैट पार्टी विद दैट ड्रेस वेयरिंग। और उसके बाद आप ये सोचोगे कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स किस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, आप अपने आप को शीशे के आगे देख के किस तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, वो आपने सोचना है। यही है आज की प्रैक्टिस हमारी। तो हमने वो चेक बनाया, अपनी फ्रीक्वेंसी रेज रखनी है सारे के सारे दिन। हमने अभी तक रोज, जब तक हमारा, मतलब वही है हमारा हमारा जब तक हमारी सांसें हैं ना, हमने इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है अबंडेंस के लिए। सो हमने अपने आप को वो पर्टिकुलर चीज को पकड़े हुए, उसको यूज करते हुए इमेजिन करना है। वो बेंटिनो मसारो अपने बुक में ये लिखते थे कि आपने, जैसे मान लीजिए आपने एक गाड़ी को मैनिफेस्ट करना है ना, तो आपने उस कार में अपने आप को बैठकर आप ये इमेजिन करोगे कि आप 6 महीने से वो कार यूज कर रहे हो, तब जो आपकी फीलिंग आएगी ना, उस फीलिंग में रहना है आपने। आज हम लोग यही करेंगे फिर। हम उस पर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाली फीलिंग के साथ हम लोग अपना चेक बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगे। चेक लिखा, उसके बाद दिन में 2 बार, रॉन्डा बर्न ने बोला दिन में 2 बार वापस से उस चेक को अपने वॉलेट से निकालो, जहां भी आप जा रहे हो, अगर आप बाहर जा रहे हो अपने पर्स में रख लो उसको, उसको निकालो, अपने हाथ में लो, कहीं पर भी जाकर अपने हाथ में लो, और हाथ में लेके वो फील करो, विजुलाइज करो 1 मिनट तक। और बस 1 मिनट से ज्यादा करने से क्या है ना, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो कीप इट 1 मिनट। 1 मिनट तक किया हम लोगों ने, और उसके बाद हमने उसको वापस रख दिया। आज के बाद कल हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चेक को हमेशा अपने वॉलेट में रख सकते हैं, नहीं तो अपने विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं, या जहां पर भी। यू हैव टू सी दैट थिंग फ्रिक्वेंटली, है ना, बार बार देखेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाएगा, उसका पैटर्न आ जाएगा। देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अट्रैक्ट दैट। एंड बिलीव मी, ये जरूर आपके लाइफ में होगा। और हम लोगों को, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि खाली आज की प्रैक्टिस, अगर हम लोगों ने पिछली 16 प्रैक्टिसेस अच्छे से की हैं, अगर हम लोग रोज अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, हमारी 10 जो अकाउंट में ब्लेसिंग्स है, अगर हम लोग रोज लिखते हैं तो, और मैम ने हमें बोला था कि रिमेंबर द मैजिक, 21 डेज के लिए हमने, मैम ने बोला था ना कि ये जरूर आप लोगों ने करना है। कि 10 तो आपके अकाउंट में ब्लेसिंग्स हो गए, और 11 आपकी रिमेंबर, कल का जो मैजिक हुआ है आपके साथ, या कल के लिए जो जो चला गया, यस्टरडे के जो ब्लेसिंग्स लिखोगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लिखने के बाद अगर हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही कम समय में हम इस चेक को मैनिफेस्ट कर लेंगे। श्योर आप लोग विक्ट्रीज भी शेयर करोगे अपने साथ, हमारे साथ। तो यही है आज की प्रैक्टिस, कि हम लोगों ने सुबह सुबह तो हमने ब्लेसिंग्स लिख ली होंगी अपनी, वो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनको रीड करना है, रिपीट, सो दैट हमारे दिमाग में वो रिपीट हो जाए। यही तो हम लोगों ने करना है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए।
ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म इज द एग्जैक्ट वर्ड। चेंज तो एक एरिया में होता है, 2 एरिया में होता है ना। जब सारे के सारे एरियाज में हम लाइफ को चेंज करते हैं ना हम लोग, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सो दैट्स व्हाट विल बी डूइंग। सो यस, ये करने के बाद, ब्लेसिंग्स के बाद, हम अपना मैजिक चेक भरेंगे और उस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे कि वो चीज हमारे पास आ चुकी है और हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, राइट? तो वो करेंगे। उसके बाद हमारी मैजिक रॉक की प्रैक्टिसेस है। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जो हम लोग रोज रात को करते हैं अपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में। अब जब हम सोने वाले होते हैं उस टाइम अपने सारे के सारे दिन की अच्छी अच्छी बातों को हम लोग सोचते हैं और सबसे अच्छी बात के लिए हम यूनिवर्स को खूब सारा थैंक यू बोलकर सो जाते हैं। सो yes, this is the magic check practice, and now we'll be going to the other book, the creative visualization. तो इसमें हम लोग कल यहाँ पर थे। कल we were reading about the relationship thing. हम लोगों को शक्ति गवेन ने, दिस पर्टिकुलर बुक इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन रिटन बाय शक्ति गवेन। तो जिस तरह से हमने मैजिक बुक में आज उसके बारे में पढ़ा है, मनी के बारे में पढ़ा है, कल हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था, तो इसी तरह से हम रिलेशनशिप के बारे में भी कल से पहले, यानी 15th प्रैक्टिस हमारा रिलेशनशिप पे था। तो अगर हम उस चीज को अपने दिमाग में रखते हैं तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का ये वाला चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। So yes, we'll be reading from this particular area if we truly desire to have deeply fulfilling. So yes, Unnati will be reading for us today. Unnati? Yes, yes, ma'am. Hello, good morning, everybody. So if you truly desire to have deeply fulfilling, happy relationships in your life, if you believe that it is possible for you to have them, and if you are willing to accept that happiness and satisfaction, then you can and will create relationships that work for you. Here are some things you can do to help you with your relationships. Number 1, look at your goals in the relationship. What do you truly want out of this relationship? Consider all levels: physical, emotional, mental, and spiritual. Write out an ideal scene or do a treasure map that expresses your perfect visualization in this relationship. Number 2, Yes, Unnati. Just, yes. Unnati, just. So here, Shakti Gavin says कि हम लोगों ने अपना फाउंडेशन को बिल्ड करना है। सबसे पहले अपने डिजायर को देखना है हमने कि व्हाट यू डिजायर एक्चुअली। आपने पहले अपने डिजायर फ्लोट करी, उसके बाद यू हैव टू बिलीव दैट योर डिजायर विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, वो बिलीव करना है, आपने उस फ्रिक्वेंसी में रहना है, बिलीव करना है कि एक बार अगर मैंने वो डिजायर कर लिया तो वो मेरा फुलफिल होगा। उसके बाद बी इन द एक्सेप्टिंग जोन कि हमने रिसीव करना है ना। दैट इज आस्क, बिलीव एंड रिसीव, वही चीज है डिजायर, बिलीव, एक्सेप्ट। जस्ट लुक इनटू दिस कि ऑल दीज बुक्स आर मेंट एंड टीचिंग अस द सेम थिंग। हो सकता है उनके पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अलग हो, लेकिन जिंदगी का फलसफा यही है कि हम लोगों को जिंदगी जीने का तरीका बता रही हैं वो लोग कि डिजायर करो, फिर बिलीव करो दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड देन एक्सेप्ट दैट इज हैपनिंग टू यू। सो इन पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स के लिए हमारे मन में ना कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप जब होता है तो अनदर पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट, राइट? सो इसलिए हम लोगों को अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज्ड रखना है और हम लोगों ने अपना डिजायर फ्लोट करना है कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। जस्ट सपोज कि यू वांट टू अट्रैक्ट अ पार्टनर इनटू योर लाइफ। अगर हम लोगों ने ऐसा करना है कि अगर मैं जैसे लड़की हूँ, अगर मुझे किसी लड़के को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, आई एम लाइक, हम लोगों ने लैक में नहीं जाना, हम लोगों ने अपने पिछले रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है कि उसमें ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था, तो ऐसा होगा, इसमें भी ऐसा होगा। तो उस चीज के लिए हम लोगों को पहले ही शक्ति गवेन ने बहुत सारी अफर्मेशंस दे दी हैं, हम लोग अफर्मेशंस को कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखना है कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हमें चाहिए क्या, what we want in our life partner। हमको कैसा पार्टनर चाहिए, हमने उसमें ड्वेल करना है। हमको उसमें क्या नहीं चाहिए वो नहीं सोचना, हमें उसमें क्या क्या पॉजिटिव्स चाहिए। उसके बाद हमने अपने डिजायर फ्लोट कर दी, उसके बाद उसको जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट करना है ना। आपको जैसे वो देखें कि देखो हम लोग सभी नेगेटिव्स और पॉजिटिव से बने हुए हैं,
ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी इंसान के रूप में भी, चाहे वो किसी भी रूप में वो इंसान हो, चाहे वो आपके फादर हो, आपके मॉम हो, आपका कोई फ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, सभी हम लोग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को मिलाकर बने हुए हैं। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम लोग उसके पॉजिटिव्स को तो ले सोचे बहुत मजा आया कि वाह इतना अच्छा है ये वो, लेकिन उसमें अगर एक आध कोई नेगेटिव पॉइंट भी होगा तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन जो है ना, वो इस चीज पे नहीं होती कि हम लोगों ने उसका खाली पॉजिटिव ही हो, हमको हर एक सिचुएशन के लिए प्रस्तुत रहना पड़ेगा, हमें अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा कि दिस कैन ऑल्सो बी द फैक्ट। तो हम सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर पार्टनर। हमने वो रेज किया अपना डिजायर को, हमने बिलीव करा वो आएगा, उसके बाद एक्सेप्ट किया। जो भी रिलेशन अपने लाइफ में है ना, नया अट्रैक्ट भी करना है तो प्रेजेंट वालों के लिए हमने ये वाली करनी है कि उनको जैसे वो हैं वैसे वो एक्सेप्ट करना है, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज एनी वन इन दिस वर्ल्ड, वी कैन ओनली चेंज वन पर्सन, दैट इज अस। हम अपने आप पर चेंज करेंगे, अपने आप पर वर्क करेंगे, तो अगला बंदा अपने आप ही उसकी फ्रीक्वेंसी रेज्ड हो जाएगी और वो वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हो, है ना। बिकॉज यू विल बी लर्निंग टू एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज। द जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है पिछले रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आपने फेस किया हो, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि उसको सीखने का मतलब ये है कि उसी नेगेटिव पैटर्न पे हम लोग काम करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक में था, वो एक लड़की थी, उनकी 3 शादियां पहले टूट चुकी थी। शी वॉज मैरिड फॉर 3 टाइम्स, उनकी 3 शादियां टूट चुकी थी। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास जब वो आई तो उन्होंने उनको बताया, वो पैटर्न देखा कि किस तरह से मेरी वो शादियां टूटी, है ना। तो उनको डॉक्टर मर्फी ने रियलाइज, वो काफी डोमिनेटिंग नेचर की थी। अगर हम लोग यही सोचते रहे कि अगर हमारा हस्बैंड है या हमारी वाइफ है वो खाली हमारे ही बारे में सोचेगी, तो नहीं, हम लोगों को उनको स्पेस भी तो देना चाहिए ना। तो डॉक्टर मर्फी ने यही कहा था उनको कि स्पेस दो, और उनको अफर्मेशन दी थी। तो इसी तरह से शक्ति कबीर भी बोल रही है कि आपको किसी भी रिलेशनशिप में गोल क्या है, व्हाट यू वांट टू अचीव, आपको क्या चाहिए उन बंदे से, उस पे सोचो। अगर आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर बंदा जो है, वो पर्सन, लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जो भी हो, वो आपके स्पिरिचुअल माइंडसेट का होना चाहिए, या आपके साथ मतलब प्रोफेशनली ऐसा होना चाहिए, इतना वो पैसा कमाए या इतनी खुशियां वो मुझे दे सके, वो सब चीजें सब कुछ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम सोचें। तो यहाँ पर ये बोलते हैं शक्ति गवेन कि हम लोग ट्रेजर मैप के जरिए और आइडियल सीन को पिक्चर करके हम उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसा ही पार्टनर। तो ट्रेजर मैप तो उन्होंने बताया ही है कि जिस तरह से हम वो बनाते हैं ना, कि हमने एक वो बनाया था कि एक बोर्ड बना, विजन बोर्ड ही है, ट्रेजर मैप इज नथिंग बट अ विजन बोर्ड, कि हमने अपने विजन बोर्ड पे बनाया, विजन बोर्ड पे हमें जैसा पार्टनर चाहिए वैसा हमने पिक्चर मूव करके लगाया उनको, वैसा पार्टनर चाहिए हमें, और अपनी एफर्मेशंस बनाई। हमने सोचा, रोंडा बर्न ने भी अपने बुक में लिखा था, पावर बुक में, कि हम ना वो प्रॉप्स बनाते हैं कि इस तरह से, लाइक वी विल बी क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप। अगर मान लीजिए आपके पास एल्मिरा है, आप और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, मान लो आपका पार्टनर, आप लोग एक एल्मिरा अगर शेयर करते हो, तो यू विल कीप अ स्पेस फॉर हिज क्लॉथ्स, है ना, कि उसके जो क्लॉथ्स है हमारी वार्डरोब में यहाँ टंगे होंगे। तो यू हैव टू स्टे इन दैट फ्रिक्वेंसी, यू हैव टू बिलीव दैट ही इज कमिंग टू यू, और ये उन्होंने अपने ड्रेसेस यहाँ रखनी है। तो वो इस तरह से रोंडा बर्न ने इसको प्रॉप बोलती थी। वी हैव टू क्रिएट दैट थिंग, वी हैव टू स्टे इन दैट फ्रिक्वेंसी। तो ये ट्रेजर मैप बना के और एक आइडियल सीन को पिक्चर करके, आइडियल सीन क्या है, दैट्स नथिंग बट विजुअलाइजेशन का ही तरीका है ना। आपको पता है ये आइडियल सीन, अगर आप लोग एक्चुअली आप लोगों ने जिससे भी प्रैक्टिस किया होगा, ये आई एम नॉट श्योर कि सबने हमने प्रैक्टिस किया है कि नहीं, अगर किया है तो आपको पता है ना कि आइडियल सीन को जब हम लिखते हैं ना, बहुत इजी लगा, आई नो कि टाइम इज अप, बट स्टिल आई वांट टू लाइक स्ट्रेस ऑन दिस, कि आइडियल सीन जब आप लिखोगे ना, आपको विजुलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कई बार कि हमसे ना विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये शक्ति गविन का ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आइडियल सीन बनाने के लिए बोला, लिखने के लिए बोला कि राइट आउट दैट आइडियल सीन, राइट आउट द स्क्रिप्ट, है ना। आप स्क्रिप्ट लिखो कि आप कैसा चाहते हो, आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हो, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखो। जब आप स्क्रिप्ट लिखोगे ना, आप जब लिखोगे आइडियल सीन अपने दिमाग के आगे क्रिएट करने से पहले आप लिखोगे ना, तो आपको वो पिक्चर करना बहुत इजी हो जाएगा।
विजुलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसे करती थी, मुझे नहीं पता था तब, हमने शक्ति गगन की बुक नहीं पढ़ी थी, बट मैंने ऐसे किया था, मुझे भी ना विजुलाइज करने में दिक्कत आता था। तो मैंने, अब मुझे नहीं पता था कि क्या तब की आइडियल सीन बोलते हैं इसको, बट मैंने ना लिख लिख के करना शुरू किया कि दिस इज हैपनिंग टू मी नाउ, या ये हो रहा है वो हो रहा है, काइंड ऑफ रोल प्ले टाइप। तो मैंने ऐसे किया था किसी भी चीज के लिए, मतलब बीट फॉर पार्टनर, बीट फॉर अट्रैक्टिंग सम पर्टिकुलर मोनेटरी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या रिलेशनशिप के लिए, मान लीजिए किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आप उसको बहुत सुखद बनाना चाहते हो, उसके लिए भी विजुलाइज करने में मुझे दिक्कत आता था पहले। तो मैं क्या करती थी, आइडियल सीन लिख लेती थी। आइडियल सीन कैसे कि हाँ ये हो रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, मेरे रिलेशनशिप इतने अच्छे हो गए ना, वो इमेजिन करके वो स्टोरी, बिकॉज आई एम वेरी मच राइटिंग पर्सन, तो मैं वो लिखती थी। तो वो राइटिंग करने से, लिखने से क्या है, विजुअलाइजेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई। कहीं कोई मुझसे पूछ भी रहा था पिछले दिनों, मैंने उनको भी यही बोला था, तब ये आइडियल सीन वाला चीज नहीं था, लेकिन मैंने कहा लिख कर देख लो पहले कि आप जो जो विजुलाइज करना चाहते हो, जो जो चाहते हो स्टोरी लिखो, फिर वो विजन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। सो या वी कैन डू दिस। एंड उसके बाद हाँ सेकंड पॉइंट पढ़ो उन्नति की, बस सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना? पढ़ो Yes. उन्नति। Take a good, honest look at what beliefs and attitudes are keeping you from creating what you want. You can use a clearing process to help you get in touch with your limiting attitudes. For example, you can write, the reason I can't have a satisfying relationship with is, or the reason I can't have what I want in this relationship is. Then write all the responses that come up for you. यस, सो यहाँ पर शक्ति गविन बोलती हैं कि आप, जैसे उन्होंने क्लियरिंग के टाइम पे समझाया था ना ये, कि किस तरह से हम क्लियरिंग कर सकते हैं। हम लोग, उन्होंने बोला था कि आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव आता है ना, वो आप लिखो, एक पेपर पे लिखो, उसके बाद आप उसको फाड़ के फेंक दो, है ना? लेकिन वंस यू हैव टू क्लियर योर माइंड, यू हैव टू डी क्लटर योर माइंड आउट ऑफ दैट। तो उसके लिए उन्होंने जैसा बोला था, अगर हम लोग उसके जाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो हम लोग आराम से देख सकेंगे इस चीज को, कि किस तरह से हमारे जो पास्ट रिलेशनशिप्स होते हैं ना, हमारे जो रिलेशनशिप औरों के साथ होते हैं, वो हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आके हिंडर करते हैं, है ना? कि वो ऐसा हुआ ना, हमारा बिलीफ ही ऐसा हो जाता है ना कि वो ऐसा है ना, इसीलिए ऐसा होगा ही मेरे साथ। अगर हमने अपने मॉम डैड के बीच में थोड़ा सा टसल देखे हो, या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हो, चाहे किसी भी मैटर को लेके देखे हो, तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि ऐसा ही होता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप उस टाइम अपने बहुत ही अच्छे, जो बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप्स है, अब अगर हॉलीवुड में भी या बॉलीवुड में भी देखोगे ना, कि बहुत रिश्ते ऐसे हैं जहां पर आप देखो कि रोज ही उनकी टूटते बिखरते रहते हैं, रोज हर कोई नया पार्टनर उनको मिलता है, मतलब चेंज करते नजर आते हैं हम लोग पार्टनर्स वो लोग। लेकिन ऐसे भी तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली एक इंसान के साथ हैं और बहुत सालों से हैप्पीली मैरिड है, तो हम लोग उनको क्यों नहीं देख सकते? तो हम लोगों ने क्या है, इट्स अगेन इट्स थिंग कि हम लोगों ने कैसे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण जो हमारे पैटर्न्स बन चुके हैं, उससे अपने माइंड को आजाद करना है। तो वही कहती हैं कि आपने क्या करना है, क्लियरिंग प्रोसेस में जाओ। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप से मुझे वो नहीं मिल रहा, अगेन वो, उसका कारण वो नहीं है, उसके कारण आप ही हो सकते हो। आपको अपने अंदर झांकना है, अपने माइंड को क्लियर करना है टू रिसीव दैट। अब हम लोग जब, किसान भी जब अपने जमीन, अपने खेत में कुछ बोता है, तो उसके पहले वो क्लियर करता है ना, वहां से वीड्स निकालता है ना? वहां से वीड्स निकालेगा, वहां पर वो टिलिंग करेगा, वो जो ट्रैक्टर के पीछे वो बड़ा बड़ा वो हल होता है ना, वो खोदता जाता है, और उसके बाद तो वो बीज बोएगा ना। इसी तरह से हमने अपना मेंटल ग्राउंड उस तरह से प्रिपेयर करना है, बाय क्लियरिंग दैट फर्स्ट, है ना? उसको हम क्लियर करेंगे अपने जिस तरह से भी, जैसे वो बोल रही है, द रीजन दैट आई कैन नॉट हैव अ सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को आप चाहते हो, आप चाहे वो आपका पार्टनर हो या कोई भी हो, आपकी मान लो पापा है, कई लोगों के ना अपने फादर के साथ थोड़े से स्ट्रिंजेंट रिलेशन होते हैं, या कोई नेबर, कई बार नेबरहुड में भी हो जाता है, whoever it is, आपने वो डैश में वो लिखा, उसके बाद आपने लिखा वाई, बिकॉज ये हमारा सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज मे बी दैट पर्सन इज नॉट ऑलवेज बिचिंग बिहाइंड यू,
वो हमेशा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए दो भाई हैं तो सिबलिंग्स हैं, तो हो सकता है कोई पेरेंट, कोई भी पेरेंट हो सकता है कि आपके सामने अपने भाई की आपकी भाई की तारीफ कर रहा हो और आपके भाई के सामने आपकी तारीफ कर रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है। सो व्हाट यू विल डू कि वो ऐसा कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है नहीं भी कर रहे हो सकता है उनका ये ओल्ड बिलीफ हो कि कहते हैं ना कि अगर हम लोग किसी को पुश करना चाहते हैं ना और अच्छा बनने के लिए, उसको एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं बार बार कि वो इंसान देखा वो इतना अच्छा है, वहीं से वो कंपैरिजन वाला थिंग ना वहां से आता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो तो कंपेयर करते रहते हैं, वो कंपेयर करते रहते हैं। हम लोगों को उसके आगे ये लॉजिक लगाना है कि वो क्यों कर रहे हैं। सो हमने अपने माइंड को यहाँ पर क्लटर फ्री करने के लिए, हमने क्लियर करने के लिए ये करना है कि वो रीजन क्या है कि क्यों मेरे रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा नहीं हो सकता या क्यों वो सेटिस्फाइंग नहीं है, वेयर ही इज लैकिंग, वो लिखना है। और उसके बाद हमने क्लियरिंग प्रोसेस में जैसे किया था वो करने के लिए वो बोलेंगे किस तरह से उसको लिखकर उसको उस पर्टिकुलर टाइम को रिविजिट करके हम वहां से वो ब्लॉक को रिमूव कर लेंगे और वहां पर हम लोग पॉजिटिव एफर्मेशन को डाल लेंगे, है ना। इसी तरह से वो अगले पॉइंट्स पे हमें बताएंगी कि किस तरह से एफर्मेशंस और विजुअल इमेजरी के जरिए हम लोग उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को क्रिएट करेंगे और उस पर्टिकुलर पर्सन को के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा अच्छा करेंगे। मेडिटेशन बताएंगे, आज हम लोग कर नहीं पाए इतना ज्यादा, बट हाँ आगे वो बताएंगे कि किस तरह से हम लोग मेडिटेटिव पोजीशन में जाकर हम वहां से वो ब्लॉक रिमूव करेंगे। क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ आज हो रहा है ना, वो हमारे पास्ट के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारे वो मेंटल ब्लॉक्स हैं, वो पास्ट बिलीफ है, इसके कारण हो रहा है। तो उसी को वो जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे आगे आगे मेडिटेशन के जरिए। रोंडा बर्न ने भी हमें बताया कि किस तरह से, जैसे कल वाला भी जो वो था ना हेल्थ वाला, उसमें भी तो यही था ना कि सबसे पहले पास्ट के लिए वो ग्रेटफुल हुए कि पास्ट में ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, उसके लिए ग्रेटफुल हुए हम लोग। उसके बाद 3 में वो था ना पास्ट के लिए हुए थे, फिर 5 में हम लोग अपने प्रेजेंट के लिए भी हुए। प्रेजेंट के बाद जब हमने 5 अपने प्रेजेंट हेल्थ के ब्लेसिंग्स को हमने हाईलाइट किया, उसके बाद हमने फ्यूचर का एक चीज सोचा कि हाँ दिस इज माई गोल एंड आई हैव टू अचीव दैट। द सेम वे इन रिलेशनशिप कि हमारे पास्ट जो पैटर्न्स बन चुके हैं, जो हमारे स्ट्रिंजेंट बिलीव्स हैं, जो हमारे लिमिटिंग थॉट्स हैं, उनको रिमूव करके हम लोगों ने कैसे उसमें बहुत ही मरहम लगा के उसमें हमने पॉजिटिव एफर्मेशन का मरहम लगाया और हम लोगों ने अपनी जमीन को उस नई चीज को अट्रैक्ट करने के लिए उसको वेलकमिंग बना दिया। सो या दिस वे विल बी कंक्लूडिंग दिस चैप्टर नाउ। अभी अभी हम लोग सेकंड तक पढ़ लेते हैं, कल हम लोग थर्ड से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच उन्नति, रीड ऑफन यार, बहुत अच्छा लगा आपकी वॉइस सुनकर। थैंक यू सो मच Thank फॉर you, रीडिंग Dean. सो ब्यूटीफुल। Thank you so much. And now if we have any query, we can obviously हम लोग उसको आंसर करेंगे और किसी के अगर एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें। And I welcome all of you. If you want to add to it, then obviously you are welcome. Sunena, thank you so much. And yeah, thank you so much for listening to me. So like, and Poonam ma'am, you are so nicely you did the job of this. ये ना co-host का अचानक से मतलब पता बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है ना, बीच बीच में कोई अनम्यूट हो जाता है, बट यू लाइक टू गेट सो ब्यूटिफुली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड दीप्ति मैम तो अभी रूम में है तो वो Yeah, बोल you नहीं were पाएंगे शायद। amazing. A beautiful Oh, session, thank really you so much. amazing. Really Thank you so loved much. every minute. Thank you so much. हाँ सुनैना बोलो। प्रिया, मेरी कोई शेयरिंग नहीं है एक्चुअली। मैंने 2 दिन से कोई मैजिकल वर्ड नहीं डाला था, तो मैं बस मैंने एक नई चीज शुरू की है तो मैं वो शेयर कर रही हूँ सबसे। लाइक मैं 2 दिन के लिए आई एम प्लेइंग अ गेम, और यू कैन से एनीथिंग, इट्स लाइक जिसको मैंने नाम दिया बी इन द मोमेंट। एम आई ऑडिबल? Yes, absolutely audible. बी इन द मोमेंट, लाइक जैसे मेरे यहाँ तो अब शाम होगी, मैं सिंस मॉर्निंग कर रही हूँ, आप कल से भी शुरू कर सकते। बी इन द मोमेंट, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम जस्ट इन दैट मोमेंट। सपोज मैं सुबह उठी, मैंने मतलब उठी 1 मिनट, आई वॉज जस्ट ऑन द बेड लाइक फॉर अ मिनट। मैंने ब्रश किया तो मैं सिर्फ आई वॉज इन द ब्रशिंग ओनली। शावर लिया तो आई वॉज इन द शावर ओनली। चाय पी रही हूँ या बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, आई एम इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली। बिलीव मी, सुबह से कर रही हूँ इवनिंग तक, इट्स लाइक कमेंडेबल। आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है,
आप कुछ और सोचते ही नहीं हो when you are in the moment. So if anybody of you wants to do it, just try it for a day because weekend है तो आप कर सकते हैं. मतलब अगर मैं gratitude में सिर्फ मैंने जैसे आज बहुत थैंक यू लिखा because I am not keeping well for some days. So मैं सुबह से अगर मैं सिर्फ थैंक यू लिख रही हूँ तो मैं थैंक यू में पूरा एब्जॉर्ब्ड हूँ. लाइक कोई और थॉट नहीं, कुछ भी नहीं. एंड मतलब हाँ, मैंने बोल दिया था घर में कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं इस टाइम पे बिजी हूँ. बट जब मैं किचन में जैसे मैं तो प्रॉपर हाउस वाइफ बन चुकी हूँ कनाडा में आके. सो इफ आई एम कुकिंग ऑल्सो, बिलीव मी, मैं अगर ऑयल डाला है तो मैंने सिर्फ ऑयल ही डाला है. ये नहीं सोचा कि अब मैंने इस सर्विंग स्पून कहाँ पड़ा होगा या नाइफ कहाँ पड़ा होगा, जो नॉर्मली होता है कि फट इस तरह से. बट ये मैं जैसे ग्लैड गेम था एक, सो ये मैंने खुद से एक सोचा कि आई डोंट नो, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा था कि मैं कैसे ठीक हूँ, या जो भी आंसर आया इट वाज लाइक बी इन द मोमेंट. सो आप इसको चाहो तो आप कर सकते हो ट्राई करके, एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस. डेफिनेटली मैं मंडे करूंगी, मैं 2 दिन का मैंने ये लिया है. सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइज ऑल्सो. सो दैट वाज माय शेयरिंग भी कह सकते हो, या जो भी मैं करती हूँ. Sunaina, it means थैंक यू more यार, like बहुत अच्छा है. focused सॉरी on. मैम. I said that या means you are totally या focused on whatever you are या doing. तो उससे आपकी फोकस्ड एंड फ्रिक्वेंसी. ओवर हाँ. थिंकिंग भी नहीं होती है ना. हम लोग ओवर थिंकिंग Yeah. बहुत ज्यादा करते हैं. हम लाइक whenever you are in this moment, just suppose just now we are all taking this study, है ना. लेकिन अगर हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में वही चल रहा है ना, अभी जाकर ये करना है, अभी जाके वो करना है, कल पता नहीं अभी खाना बनाना है, या बच्चे ने स्कूल जाना, अगर वो सब चल रहा है ना, दैट इज ओवर थिंकिंग. बहुत ओवर थिंकिंग और पैशन में बहुत फर्क होता है. इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इसका मतलब है उसका स्टिल अगेन हेयर एंड नाउ आप उसी मोमेंट में रहते. अब अगर आप काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके बैकग्राउंड में यही चल रहा है हमेशा कि कुकिंग में क्या हो रहा है और घर में क्या हो रहा है, वो हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर ओवर थिंकिंग दैट सिचुएशन. अगर मान लीजिए आप अपने काम के लिए फोकस्ड हो इतना ज्यादा, आप अपने ऑफिस का जो भी काम है बहुत ही तल्लीनता से कर रहे हो, लेकिन वो आपका पैशन है. आप जब आप ऑफिस में हो तब आप ऑफिस का काम बहुत ही तल्लीनता से कर रहे हो, वो आपका पैशन है. लेकिन वंस यू आर होम एंड अगेन यू आर कैरिंग दैट बैगेज फ्रॉम योर ऑफिस कि मुझे ये करना था या वो करना है या कल का काम अभी करना है, अगर मतलब मान लो फिजिकली नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल इफ इट ऑक्यूपाइज योर माइंड दैट मोमेंट व्हेन यू आर होम एंड यू आर ऑक्यूपाइंग दैट पर्टिकुलर थॉट ऑफ योर्स कि मैं ऑफिस में ये कल ये करूंगा, ये प्रोजेक्ट बनाना है मुझे, अगर वो कर रहा है ना, तो दैट इज ओवर थिंकिंग. वो ओवर थिंकिंग कर करके हम लोग ना मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाते जाते हैं. ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हम लोगों को, इतना ज्यादा हम लोगों को सिक कर देता है ना कई बार. कई बार हम लोग उसको ना पैशन का नाम देते हैं कि वो पैशन है, वो पैशन नहीं है. पैशन का मतलब ये नहीं होता कि हम उसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहे. नहीं, खाली वो चीज नहीं है हमारे लाइफ में. हमारी लाइफ बहुत सारे ब्यूटीफुल चीजों का अमलगमेशन है, जो कि सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. जिस सेगमेंट में हम लोग हैं उसी मोमेंट में रहने का. सभी अब वो कहते हैं ना कि हेयर एंड नाउ, बी इन दैट मोमेंट, राइटली सेड बाय सुनैना, कि बी इन द पर्टिकुलर मोमेंट वेयर यू आर इन नाउ पर्टिकुलरली. अगर सो रहे हो तो अभी खाली सो आप, अगर खा रहे हो तो खाली खाओ, खाने के एक एक बाइट को रेलिश करो, राइट. तो यही है, अगर हम उसी मोमेंट में रहेंगे तो हमें ग्रैटिट्यूड भी याद आएगा कि हाँ इस मोमेंट में है, वी आर थैंकफुल फॉर दिस मोमेंट, और हम लोग उस चीज का ग्रैटिट्यूड करेंगे. तो दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल वे टू स्टे इन ग्रैटिट्यूड, टू कीप योर फ्रीक्वेंसी रेज्ड. क्योंकि बाकी सब पचड़ों को हम लोग भूल के एक साइड में छोड़कर हम लोग नाव में रह रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड फैक्ट. थैंक यू सो मच सुनैना. या नाइस. एंड वन मोर थिंग, लाइक इससे आप मैं एक छोटी सी शेयरिंग इसके साथ अभी कर देती हूँ. लाइक आई जस्ट कुक ब्रेड रोल्स, आपको पता होगा, फॉर माय सन. सो आप बिलीव नहीं करेंगे, तो मैंने जब उसके लिए लिखना शुरू किया तो सिर्फ जस्ट फॉर दैट डिश ओनली मैंने 50 थैंक यूज लिखे. बिकॉज मैंने एक एक चीज, मतलब इवन जो तलने वाला होता है, आलू था, ब्रेड था, फ्रिज में से निकाला, वो जो किचन काउंटर था, वो जो एग्जॉस्ट था, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. प्रिया ने बिल्कुल ठीक बोला कि बी इन द मोमेंट के साथ आपके नंबर ऑफ थैंक यूज इतने बढ़ जाते हैं, बिलीव मी, लाइक एक दिन में ही 200 प्लस हो जाते हैं. सो आई रियली वांट कि एक बार आप ट्राई करके देखिए. यू आर ऑल्सो, मतलब आपको खुद से ही बहुत मजा आएगा.
जैसे हम लोग दीप्ति हमेशा हमें पहले वीकेंड पे एक ऐसा हमें एक होमवर्क कह लो या हम लोग पावर का वो करते थे व्हाट यू लव टू ओके हम एक लव वर्ड से हम कितनी चीजों को प्यार करते हैं हम वो लिखते थे तो हमारा सैटरडे संडे फिक्स असाइनमेंट होता था ओके आई लव माई सेल्फ आई लव माई दिस आई लव तो इस तरह से यही सेम वही चीज है कुछ लिखा हुआ है ना मैं बिल्कुल। डिस्ट्रैक्ट बी इन द मोमेंट भूल गई सो जस्ट ट्राई रितु मैम सरिता मैम जो मतलब मैं देखती हूँ जो लोग बहुत वो पैशनेटली वर्ड्स को भी यूज करते हैं तो आई एम रियली सॉरी मैं आ नहीं पाई मैं मेरे को थोड़ा इन्फेक्शन ज्यादा था आई वाज इन पेन बट मैंने आज सुबह से ये शुरू किया है सो आप लोगों का तो मेरे से आप आगे हैं लाइक अभी मॉर्निंग हो गई है तो आप सैटरडे कर सकते हैं संडे व्हाटएवर व्हेनेवर यू फील लाइक इवन आप आवरली भी कर सकते हैं 2 आवर्स के लिए या 4 आवर्स के लिए या 6 आवर्स के लिए जस्ट लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड मंडे खूब सारी शेयरिंग्स लेके आते हैं फिर Sunila, this is so beautiful. I think I तो need it the most, you know, like इतनी आदत पड़ी होती है चार चीज करने की मतलब this is such a beautiful thing you have shared. Really, I'm Thank you. really going to apply this. मैं तो आप आज मतलब पक्का से आप I'll apply बच्चों को this. भी बोल दे सकते हो ये असाइनमेंट Yeah, बच्चों वाले group में I'll भी do you know that. It's a beautiful Yeah. thing. And thank you, Sunila. You always share whatever you do. You're such a sweetheart, really. same बांटती है वो same to गिवर you. है गिवर बांटती रहती है एंड ब्यूटीफुल थैंक यू प्रिया मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ प्रिया जब बोलती है तो इसको बच्चे की तरह ऐसे पीछे से बुलाना पड़ता है बेटा टाइम खत्म हो गया शी गॉट सो कुछ भी एब्जॉर्ब ये इतना माइंडफुली बोलती है इतना एब्जॉर्ब्ड होके बोलती है तो इसकी अपनी एनर्जी जो होती है वो बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेती है आई मीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना ऑनेस्टली मतलब She's दीप्ति so से कंपैरिजन नहीं हो रही बट इट इज लाइक कि एक होता है ना मतलब आज थोड़ा कम बोलती हूँ मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है Priya, but totally soaked in the session. Amazing. हाँ वही मैं वही वाली बात है ना हेयर एंड नाउ में हो जाती है कि हाँ हेयर एंड नाउ ऑल्दो आई हैव गॉट अ लोड्स ऑफ स्टफ टू डू अभी इसके बाद बट स्टिल कौन देखा जाएगा ना जब उस मोमेंट पे पहुंचेंगे वो सुनैना वाली बात है उस मोमेंट में पहुंचेंगे तो देखा जाएगा सब कुछ हो जाएगा होना तो है ही आगे पीछे होना तो सब कुछ ही है बट व्हेन एक्चुअली दिस इज इम्पोर्टेंट यू नो कि व्हेन यू आर इनटू समथिंग ना यू हैव टू इन्वोक योर एनर्जी इनटू दैट तो ये इम्पोर्टेंट है मैं इस चीज को शुरू से ही फॉलो करती हूँ एंड yeah, thank you so much. And thank you so much, everyone, for coming to the session. And thanks to all the, obviously, our dear YouTube viewers also. Ma'am, जैसे कहती कि I'm sure मतलब our life is getting transformed. Thank you so much. And thank you, ma'am, for giving this opportunity to me. And yeah, thank you so much, everyone. So let's conclude the session today. We'll meet tomorrow again with the same enthusiasm, same zeal, and with Deepti, ma'am, of course. Thank you so much, everyone. Thank Love you. you Thank all. you, Priya. Thank you, Sunena. Thank you, Poonam Priya. all. Thank you. Thank Thank you you. so much, Thank you, Priya. Priya. Thank you, everyone. Beautifully explained, both of you. Thank you. Thank you so much. Thank you.